Jai Hind students. So today we are going to start the rest of the question of exercise 6.5. Question number 23 to 26. All the 4 questions are very important. Already I told you that this exercise is very important for competitive point of view, CBSE point of view, but especially these 4 questions, last 4 questions are very important, totally different now. So before I start the question, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and bell icon, and share the video to your friends or in your circle. So what is the question? I am not going to write here the question. Question is, prove that the volume of a largest cone that can be inscribed in a sphere of radius, यानी capital R दे रखा है, is 8/27 of the volume of sphere. So उसने कहा है कि एक कोन जो स्फीयर के अंदर फिट है, एक कोन जो स्फीयर के अंदर फिट है, like this. This is sphere and this is cone. Okay. So this is, what is the radius of sphere? It is given that capital R is the radius of sphere. Now touch this, join this. इसको मैं join कर लेता हूं. Let this is x. So the height of this cone is R plus x. Okay, and this radius, I am going to write here name A, B, C, or this is O, this is D. Okay, so now first of all we have to prove that this cone is the largest cone, means maximum we have to prove. किसको? वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम प्रूव करना है. बाकी जो प्रूव करने वाले यह है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू 8/27 of volume of the sphere, that we will see. But first of all, it is given to you that radius of this sphere R is the radius of sphere. Okay, then let x be, let OD is equal to x units. Okay, now in triangle ADO या AOD, so that we will get the radius of sphere, or sorry, radius of cone. So in triangle AOD क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. सो OA का स्क्वायर इज R स्क्वायर, OD का स्क्वायर इज X स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. सो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. फर्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, लार्जेस्ट कोन जिसको हमें बताना है. लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई रेडियस. कोन का रेडियस कितना है? AD. R का स्क्वायर
AD का स्क्वायर इनटू 1/3 पाई r square h height of the cone is what? Height of the cone is r plus x. So I am writing here r plus x. This is the height of the cone. Okay. Now v is equal to 1/3 pi. The value of AD का square is r square minus x square into r plus x. Differentiate with respect to x because now r is the radius we prefer for sphere. Okay? So जो कोन है अब वो फिक्स्ड हो गया है उसका रेडियस. अब ये कोन है, कोन में सिर्फ x ही है जो वन वेरिएबल में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें किसमें कोन में. तो विद रिस्पेक्ट टू x वी विल डिफरेंशिएट. सो v डैश x 1/3 पाई कांस्टेंट है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की करेंगे x की 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन की करेंगे -2x. क्लियर? r तो 0 हो जाएगा बिकॉज दैट इज फिक्स्ड, तो वो फिक्स्ड है तो कांस्टेंट माना जाएगा. नाउ नेक्स्ट, सो v डैश पुट v डैश x इज इक्वल टू 0. सो ये आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर, मल्टीप्लाई कर लेंगे -2xr, उसके बाद -2x का स्क्वेयर इक्वल टू 0. ये सारी चीजें 0 होगी. ये बन गया r स्क्वेयर माइनस 3x का स्क्वेयर -2xr is equal to 0. or I can write like this. This is a quadratic now. ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई. कैन आई राइट लाइक दिस? r स्क्वेयर माइनस 2xr माइनस 3x का स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए और प्लस माइनस करके ये. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3, प्लस माइनस करेंगे तो -2 बनना चाहिए. तो कैन आई राइट r स्क्वेयर माइनस 3xr प्लस xr माइनस 3x square equal to 0. What is common? r is common here. r minus 3x plus what is common here? यहां से x, ये आ जाएगा r minus 3x equal to 0. एक आ गया r plus x is equal to 0. एक आ गया r minus 3x is equal to 0. This is not possible कि r plus x हाइट जो है वो किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल. सो रिजेक्ट. नाउ हियर x की वैल्यू कितनी आ गई? r/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू शो दैट कि दिस वॉल्यूम इज मैक्सिमम. सो v डबल डैश x करते हैं. ये आया था v डबल डैश x, ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करके तो 1/3 पाई, r कांस्टेंट है 0 हो गया, -2x, यहां पे -2r, यहां पे -4x. ऑल द टर्म्स आर नेगेटिव. सो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं और x इज इक्वल टू क्या आ गया? r/3. दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, बट जैसे ही बाहर माइनस आ गया, -2r/3 minus 2r minus 4r/3. When you will take the LCM, okay, ये माइनस कॉमन ले चुके हैं हम लोग. When you will take the LCM, ये आ जाएगा 2, 6, 2 और 6, 8, 4, 12 अपॉन 12r/3. बट बाहर नेगेटिव है, इट मीन्स दिस इज लेस देन 0. सो इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम किस पे? एट x इज इक्वल टू r बाय
सो इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू r/3. इस पे मैक्सिमम वॉल्यूम बनाएगा. नाउ ये तो प्रूफ हो गया. नाउ आवर रिजल्ट कौन सा रिजल्ट था हमारा? वी हैव टू प्रूव, जो हमें बताया गया था, वी हैव टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वो प्रूफ करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ किसका? कोन का. क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर कितना लिखा गया था? आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू आर प्लस एक्स. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर. 1/3 पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 9 मल्टीप्लाई आर प्लस आर बाय 3. सो दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई. ये आया 8 आर स्क्वेयर अपॉन 9. ये कितना आ गया? 4 आर स्क्वेयर अपॉन 3. हमें 8/27 बाहर लेना है. ले लो 8/27. अंदर क्या रह गया? 8 निकला, 27 निकला, बचा क्या? 4. ठीक है, 4 पाई. ओके, एंड अपॉन 4/3 पाई आर. कितना आना चाहिए हमारे पास? जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये सॉरी स्क्वायर नहीं था, पाई आर. तो ये बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. इट मींस वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27. और आई कैन राइट इट इंप्लाइज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये जो r था ये स्फीयर का रेडियस था. सो दिस वी प्रूव दैट whatever it is mentioned in the question. Pause the video to note down. Now question number 24. Show that right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. So 24th question. 24th question हमें क्या कहता है? It's very simple. एक कोन है, okay, and we have to prove this cone. इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो लीस्ट बताना है, लीस्ट. और गिवन क्या है? वॉल्यूम. सो इसकी हाइट h मान लेते हैं, रेडियस r, स्लैंट हाइट l. क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ कोन? दैट इज पाई आर एल. लेट अस सी. सबसे पहले डायमेंशन लिखते हैं. लेट आर एच और वॉल्यूम का v. देन कर्व सरफेस एरिया का c लिख लेते हैं, और यू कैन से दैट s भी लिख सकते हैं. इट इज अप टू यू. बी द रेडियस, हाइट, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. सो व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? C होता है पाई आर एल. एंड व्हाट इज L? L इज अंडर रूट h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर. 90 डिग्री होता है ये. सो पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है. नेक्स्ट, उसके बाद व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एक्स. ये फिक्स्ड है. इट मींस जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसका यूज किया जाता है यहां पे. सो C है पाई आर एल. एल की वैल्यू पुट करते हैं तो C इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर. द बेस्ट वे इज रिमूव द अंडर रूट. एज आई टॉट यू इन माई प्रीवियस वन ऑफ द क्वेश्चन, कि जब भी अंडर रूट आए स्क्वेयरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको. C स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर. नाउ h स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर. इसका नाम है लेट इट बी z. कुछ भी नाम दे सकते हैं आप. सो नाउ z कितना आ गया? पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर
h square plus pi square r4. Now from here we can find out the value of r square also. वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. फाइंड आउट h. यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? h की वैल्यू. और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3v upon pi r square. Put here z is equal to pi square r square 9v square pi square r कितना आ जाएगा? स्क्वायर है 4 प्लस पाई स्क्वायर r4. कैंसल आउट r स्क्वायर से ये 2. z इज इक्वल टू 9v का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4. फाइंड आउट z डैश r. क्योंकि अब r ही रह गया है. रेस्ट वन ऑल द टर्म्स आर फिक्स्ड हियर, तो दे विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट. r है, सो r स्क्वायर को v कांस्टेंट है, r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर लेके जाते हैं. पावर नीचे आई, पावर में एक कम हुआ, तो कैन आई राइट लाइक दिस -2 अपॉन r क्यूब. सो 9v स्क्वायर माइनस 2 अपॉन r क्यूब प्लस पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, r4 का करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब. ओके, नाउ पुट दिस इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्या होता है कि हम इसको किसके इक्वल पुट करते हैं? पुट z डैश r इज इक्वल टू 0. 9 2 18 माइनस 18v स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब. 2 2 2 9 माइनस से माइनस कैंसिल. r क्यूब को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r6. नाउ इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ v ताकि हम h और r का रिलेशन निकाल सकें. क्वेश्चन में बताया था कि हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम r होनी चाहिए. सो लेट अस सी. यहां से हम यूज करते हैं v का, तो v की वैल्यू कितनी है? 1/3 पाई r स्क्वायर h. v स्क्वायर की कितनी आ जाएगी? 1/9 पाई r सॉरी पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r6. 9 से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, r4 से r6, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, h इज इक्वल टू √2r. दिस वी हैव टू we prove now. Now second, what to show? Now in this question we have to show the second thing, that curved surface area is minimum, least curved surface area. तो minimum show करना है, तो again you can differentiate this z dash r. Now again differentiate करेंगे तो z डबल डैश r to show it minimum. मिनिमम शो करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? r पर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. अगेन ये -18 v स्क्वायर बाहर, r क्यूब की वैल्यू, r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर लेके गए, पावर डाउन, पावर में एक कम, सो ये कितना आ गया? -3 अपॉन r4 प्लस ये कितना आया? 3 डाउन हुआ, 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर. ओके, नाउ z डबल डैश r when r is equal to h upon √2 is equal to 8 24 3 54 v square upon r4 plus 12 pi square r square. Now you can put the value of r here. हम वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं r की, वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, किसी का वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी. रेडियस इज पॉजिटिव, अगेन रेडियस इज पॉजिटिव, तो यू कैन पुट हियर 54. v की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें तो यू कैन पुट हियर, आप पुट कर सकते हैं 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर अपॉन r4. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 12 पाई स्क्वायर, r की वैल्यू
h अपॉन रूट 2, तो ये आ जाएगा h स्क्वेयर अपॉन 2, कैंसिल आउट, 6, 9 6 54, सो ये बन गया 6 पाई स्क्वेयर h स्क्वेयर प्लस 6 पाई स्क्वेयर h स्क्वेयर, यानी 12 पाई स्क्वेयर h स्क्वेयर, और हाइट पॉजिटिव होती है तो इट इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एट r is equal to h upon root 2. Pause the video to note down. Now, very important question. Very important. Show that the semi-vertical angle of a cone. Semi-vertical means आधा एंगल जो वर्टिकल लाइन बनाती है. देखो ध्यान से. Diagram is very important in these type of questions. सेमी वर्टिकल एंगल, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल. ये वेदर दिस यू कैन टेक, लेट इट बी अल्फा, इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, लेट इट बी अल्फा. तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सो वी हैव टू शो इट मैक्सिमम, किसको, वॉल्यूम को, and given slant height, तो slant height is given to you L, ये fixed है, तो ये हमें given है. हाइट h मान लेते हैं, हाइट h मान लेते हैं और इसको r मान लेते हैं. क्लियर? नाउ कम टू दिस सॉल्यूशन. इट्स वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अल्फा बी द semi-vertical angle, semi-vertical angle, okay, then R, H and L be the radius, height and slant height, V be the volume and V be the volume of cone. तो what is the volume of cone? क्या होता है volume of cone? 1/3 pi r square h. अब this is in two variable r and l. We have to convert in one variable. और हम किसका यूज करेंगे, जो फिक्स्ड है. फिक्स्ड क्या है, l, और l क्या होता है, l होता है अंडर रूट h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर. सो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वेदर h और वेदर r, so that we can introduce that value here. जो fixed होगा वो treated as a constant. So, or I can write like this, L square is equal to h square plus r square. So you can find out the value of r square. तो r square कितना आ जाएगा, L square minus h square. Put here, V is equal to 1/3 pi L square minus h square into h. V is equal to 1/3 pi L square h minus h cube. Now, only this equation is now in one variable, h variable. क्योंकि r और h दो थे, r को रिमूव किया किसी कांस्टेंट के साथ और h में फॉर्म में ले आए. Now डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, h के. So 1/3 pi L स्क्वेयर माइनस 3h का स्क्वेयर. सो क्या आ जाएगा, पुट v डैश h इज इक्वल टू 0. सो 1/3 पाई L स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर इज इक्वल टू, जैसे ही 0 के इक्वल पुट करेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ गया. L स्क्वेयर इज इक्वल टू 3h का स्क्वेयर, यानी कि L अपॉन h इज इक्वल टू अंडर रूट 3. बट वी हैव टू शो व्हाट, वी हैव टू शो दैट कि जो सेमी वर्टिकल एंगल यानी अल्फा है वो क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 2. tan इनवर्स अंडर रूट 2 हमें प्रूव करना है. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2.
और आई कैन से दैट tan अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये चीज प्रूफ करनी है। लेट अस सी L अपॉन H क्या है। इफ अल्फा इज द एंगल, सो L अपॉन H क्या बनेगा? L अपॉन H एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस, सो ये क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि अंडर रूट 3 अपॉन 1। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज बना, सॉरी ये बना था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हमें निकालना है r अपॉन h। r कहां से आ सकता है? h तो ठीक है, r कैसे बनेगा? l की जगह l क्या है? h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर अपॉन h इज इक्वल टू अंडर रूट 3। h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है? ये l स्क्वेयर की, और हमें यहां पे क्या चाहिए? l, तो क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही रहने देते, h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3h। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वेयर करता हूं, h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर इक्वल टू 3h का स्क्वेयर, इसको इधर ले जाते हैं, r स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h का स्क्वेयर, r अपॉन h इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और r अपॉन h क्या है? दैट इज tan अल्फा, दैट इज अंडर रूट 2। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो यू कैन यूज दिस मेथड, इट्स वेरी सिंपल। अदरवाइज यू कैन यूज योर 10th क्लास मेथड ऑल्सो, कि कोई भी चीज रेशियो में दी गई हो तो ये k टाइम मान लेते और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा लेते, तो भी हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। नाउ वी हैव टू प्रूव क्या? वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम, अगेन वी विल डिफरेंशिएट v डबल डैश h इज इक्वल टू क्या आएगा? v डबल डैश h निकालेंगे तो यह आएगा 1/3 पाई, l कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस 6h, 3 2 जा v डबल डैश h, और h की क्या वैल्यू है हमारे पास? h की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। h की क्या वैल्यू आई थी? h की वैल्यू आई थी l अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, h की वैल्यू l अपॉन अंडर रूट 3। स्लैंट हाइट है, पॉजिटिव रहेगी, और ये हो जाएगा क्या? लेस देन 0। सो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन h इज इक्वल टू l अपॉन रूट 3, और यू कैन से दैट जब ये एंगल जो होगा वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 होगा। यू कैन राइट लाइक दिस, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेदर यू कैन राइट दिस, वेदर यू कैन राइट दिस, क्योंकि ये सभी इन्हीं से निकाला गया है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यहां पे एंगल का यूज किया गया है मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, show that the semi-vertical angle of a cone of a given surface area means total surface area and maximum volume. So this is the cone, ये cone बना, और उसके बाद we will write this dimension, ये h है, okay, this is r and this is slant है। सो सबसे पहले हम लेट करते हैं क्या? सॉल्यूशन लेट r h l v s बी द
radius, height, slant height, volume, and total surface area of denote किए. Now what is given? Given is surface area. So S is equal to pi r l plus कितना होता है pi r square. This is the total surface area of a cone. Curved surface area plus area of square. Okay. Then next we have to show maximum किसको करना है? वॉल्यूम को. तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर. जो गिवन सरफेस एरिया मींस दिस इज फिक्स सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें. ओके, एंड दिस वी हैव टू प्रूव. ये तो बात की बात है. सेमी वर्टिकल एंगल है, सो वही इसको भी अल्फा मान लेते हैं. अल्फा यहां पे लिख भी देते हैं. लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी वर्टिकल एंगल. ओके, वी हैव टू प्रूव दिस मैक्सिमम. यानी आर और एच को रिमूव करना पड़ेगा किसी एक उसमें, वेदर इन आर वेदर इन एच. सो हम यहां से एल की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ किसके? एच या एल की वैल्यू यहां से, क्योंकि आर की तो पॉसिबल नहीं है, तो एल की निकाली जा सकती है. फिर यहां से इसको किसको रिमूव करना पड़ेगा? एच को. सो लिसन वेरी केयरफुली. V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो हम क्या करते हैं? एच की वैल्यू निकालते हैं. एच को कैसे लिखा जा सकता है? V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट. और मैंने आपको कहा था जब भी अंडर रूट हो क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग कर लेते हैं. 1/9 पाई स्क्वायर R4 L square minus R square. Now find out the value of L from here. कहां से? सरफेस एरिया में से. इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 L की वैल्यू क्या आएगी? S माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ L. पुट हियर नाउ. यहां पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वेदर इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं. S अपॉन पाई आर माइनस कितना? पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, तो आर. ये भी लिखा जा सकता है इंस्टेड ऑफ दिस टू मेक इट इजियर. ये पाई है, डोंट गेट कंफ्यूज. पुट हियर नाउ. इसको मैं z मान लेता हूं. लेट z इज इक्वल, सो z इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वेयर R4 L स्क्वेयर है तो ये पूरा L है, तो S माइनस पाई R माइनस R का होल स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर, लाइक दिस. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R, क्योंकि अब R ही बचा है इसमें, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Z डैश R 1/9 पाई स्क्वेयर. ये R4 है तो वी विल यूज प्रोडक्ट रूल, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं टू मेक इट इजी. Z इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वेयर R4. अंदर वाले को ओपन करते हैं. A का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस B का स्क्वेयर माइनस 2AB, तो इसको 2S पाई R इंटू R कैंसिल आउट हो गया, माइनस R स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया. थोड़ा क्वेश्चन और इजी हो गया. 1/9 पाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई दिस R4
अंदर मल्टीप्लाई कर दो या पाई स्क्वायर पूरा का पूरा ही मल्टीप्लाई कर दो। सो ये बन गया एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, कैंसल आउट। ओके, हियर -2s अपॉन पाई मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर आर 4, पाई से पाई कैंसल, सॉरी एस कैंसल नहीं होगा, एक पाई कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद यू, यहां पे एक बच गया। z इज इक्वल टू 1/9 s स्क्वेयर अप r स्क्वेयर माइनस 2s पाई r। नाउ इट इज इजियर, नाउ डिफरेंशिएट z डैश r 1/9 2s स्क्वेयर r, क्योंकि ये कांस्टेंट है यही डिफरेंशिएट होगा, माइनस 8s पाई r क्यूब। ओके, नाउ पुट नेक्स्ट स्टेप, पुट z डैश r इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्या बचेगा, 2s स्क्वेयर r इज इक्वल टू 8s पाई r क्यूब। एक कैंसल आउट, एक r से r कैंसल आउट। व्हाट इज लेफ्ट विद यू, 2s इज इक्वल टू 8 पाई r स्क्वेयर, यहां स्क्वेयर बच गया। ओके, तो 3 को यहां से 3 कटा और क्या बचा, 2 बचा। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। s को रिमूव करना है, s को उसी की फॉर्म में लिख दो जो हमने यहां पे लिखा था। s क्या था हमारे पास, s हमारे पास था, क्या वैल्यू थी, पाई r, सॉरी इसको भी काट देते हैं 4। s हमारे पास कितना था, पाई r l प्लस पाई r स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर, पाई r l इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसल, एक r से एक कैंसल, L is equal to 3r. What is L here? L stand for hypotenuse, R stand for perpendicular। और साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उल्टा। तो हम क्या लिख लेते हैं, R अपॉन L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। R अपॉन L क्या है, साइन अल्फा, अल्फा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। So this is your result which we proved. Now second, what to prove? Second हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम क्या बचा था, ये, इसी को, सॉरी दिस वन। अब इसी को दोबारा अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, z डबल डैश r इज इक्वल टू 1/9 बाहर, ये 2s, सो स्क्वेयर 2s का स्क्वेयर माइनस कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को करेंगे, 8 3 24s पाई r स्क्वेयर। नाउ वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ r, लिसन वेरी केयरफुली। r की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, L/3। या तो आप ये r इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, और वन मोर थिंग यू कैन डू, आप r की कोई और वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, z डबल डैश r, r इज इक्वल टू 1/9, s बाहर ले लेते हैं, 2s माइनस ये 2 भी बाहर ले लो, दैट इज बेटर, s माइनस 12 पाई r स्क्वायर। हमने s बाहर ले लिया, s माइनस 12 पाई r स्क्वेयर। नाउ टू प्रूव दैट इट इज मैक्सिमम वी हैव टू प्रूव दिस इज लेस देन 0, हमें ये प्रूव करना है। सो हम यहां इसका इस्तेमाल करेंगे, यहां से देखो जरा ध्यान से, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है 12 पाई r स्क्वेयर, 12 पाई r स्क्वेयर, ध्यान से देखो, पाई r स्क्वेयर की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, या तो यहां से, या फिर ये कहां गया वो 0, ये रहा, ये देखो यहां पे भी
यहां से भी हम आर की वैल्यू निकाल सकते थे, देखो इन टर्म्स ऑफ एस। कैसे? यहां से ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस अपॉन 4 पाई का अंडर रूट। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस अपॉन 4 पाई का अंडर रूट। सो कैन आई राइट लाइक दिस, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई। क्योंकि अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये भी आर की वैल्यू है, इक्वल टू 0 जब पुट किया था वो भी आर की वैल्यू है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2/9 एस माइनस 12 पाई। आर स्क्वायर है तो एस अपॉन 4 पाई, कैंसिल आउट, 4 3 जा 12। सो एस माइनस 2s 3s, ये क्या बन गया? 2s बन गया। किसका? माइनस का। माइनस बाहर लेंगे तो लेस देन क्या हो जाएगा? 0। सो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू, यू कैन राइट l/3, और हमने यहां लिखा ही है व्हेन r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। बात बराबर है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली द कैलकुलेशन पार्ट। Pause the video to note down and solve all the exercise, questions of the exercise, and if you face any kind of difficulty, then you can send your queries through WhatsApp number or through this on comment box. So till that, Jai Hind.